I think you'll be able to do it. Why don't you try this first? Let's do this. पहले मैं इसको इस तरह ओपन कर लेता हूँ. That should make the question easier. Right? dx over d theta तो बनेगा a plus a cos theta और dy over d theta is 0 minus a minus sin theta, a sin theta. So dy over d theta, dy over dx, dx over d theta, a sin theta, dy over dx, okay. किसी को कोई confusion? ये सब में से कॉमन आ जाएगा एंड कैंसिल आउट हो जाएगा. सही है. चलो ये वाला स्टार्ट कर रहा हूँ. जहाँ पे confusion हो प्लीज say out aloud and I'll solve it. Rival, I'm not sure about the 4 बस 4 क्यों आ रहा है. बस once B कर रहा हूँ. एक मिनट. किसी का 4 नहीं आया है. Rival, the rest is fine. किसी को कोई confusion हो तो please say out aloud. हाँ अरुण सही है. ये 4 से कैंसिल हो जाएगा. रिवल आपने कुछ गलती की है. देख लेना क्या है. Okay. Then it says find the coordinates of the point on the curve where the tangent is parallel to the y-axis. सही है. Tangent parallel to the y-axis का मतलब होता है कि it's a vertical line. So the gradient is undefined. So dy over dx is therefore this. इसका जो denominator होगा वो equals to 0 हो जाएगा. So either sin theta equals to 0 or cos theta equals to 0. Do we all understand this? अब ये और से आपने देखना कि रेंज क्या दी हुई है. 90 से 270 के बीच में. सही है. तो साइन थीटा 0 कब होता है. साइन थीटा 0 होता है at 0 and then at pi. सही है. and then again at 2 pi. और cos थीटा 0 कब होता है. pi over 2 और 3 pi over 2 पे 90 और 270 पे. तो आंसर क्या दोगे. The answer should be then this one. This is the only one that fits. Find the coordinates. वैसे तो पूछा हुआ है. coordinates अभी निकालता हूँ. ये थीटा आ गया. इसको x पे लगाएंगे.
Okay, that should give me 1 or 4 tan theta. That should give me 0. 1 comma 0. सबको समझ आया? These are good questions and similar. ये अभी तो past paper भी आ गया. But you'll see that these questions get even more difficult. dx over dt आएगा 0 plus 1 over t minus 2. dy over dt आएगा 1 minus 9 over t square. ये मैं इसको डायरेक्ट यूं लिख देता हूँ. सही. फिर I think this is simplified. This doesn't need any more simplification. इसको थोड़ा सा करना पड़ेगा. कर लेते हैं 1 minus 9 over t square. So this becomes LCM लेके t square minus 9. Then when I'm doing so t square minus 9 over t square dy over dx 1 over t minus 2. So t square minus 9 t minus 2 over t square. सही है मिस्टर बॉब? Okay, part 2 कहता है find the coordinates of the only point on the curve at which the gradient is equals to 0. So equals to 0. ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा. फिर हम कहेंगे कि either this equals to 0 or that equals to 0. t square equals to 9, t equals to plus minus 3 or t equals to 2. तो कौन सा आंसर दोगे? t की कौन सी वैल्यू आएगी? t की वैल्यू Plus 3. सही है. क्यों प्लस 3? Because the question says greater than 2. सही है. क्यों कहते हैं ऐसे क्वेश्चन greater than 2? ऐसे क्यों कहता है? Why is the question? क्या undefined है सुफियान? हाँ, ln के आगे जो है वो 2 से बड़ा नंबर, t की जगह 2 से बड़ा नंबर लगाना पड़ेगा बिकॉज ln के सामने नेगेटिव नंबर नहीं आ सकता. तो t इक्वल्स टू 3 आ गया. अब x की वैल्यू निकाल लेते हैं. 1 plus ln 3 minus 2, so 1 and 3 plus 9 over 3, 6, 1 comma 6. थोड़े से मुश्किल वाले हो मैं कल परसों कराऊंगा. Part 1 quickly. यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाओगे. सही है. मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ. तुम्हारा प्रोडक्ट रूल मैच ना करे तो मुझे बताना. सही है. फिर सही मैं कर ही दिया तो मैं पूरा कर देता हूँ. ई पावर टी कॉमन ले लो और टी कॉमन ले लो. तो 2 प्लस टी और नीचे 3t. अब ये 3t और 3t और ये t है ना, तो 3t माइनस टी हो जाएगा. तो यहाँ पे 2t रह जाएगा. सही.
फिर पार्ट 2 में कहते हैं शो दैट द टेंजेंट इज पैरेलल, तो मैं जो है वो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3 लगानी है, सही है। बट 1 3 तो नहीं लगा सकते, तो t की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो मैं किसी भी एक में लगा के निकाल लेता हूँ। ये दूसरी साइड पे जाके ln बन जाएगा। t की वैल्यू 0 लगानी है, सही है, t की वैल्यू 0, तो 0 0 प्लस 2 3e⁴, तो ये 0 बन जाएगा, सही है। When it's the gradient is 0, the line is horizontal and it's therefore parallel to the x-axis. के अंदर आपने प्रोडक्ट लॉ लगाया है कहाँ पे? हाँ dy/dt के। हाँ, ये मैंने डायरेक्ट लगा दिया, ये u डैश लिखा हुआ है, ये v लिखा हुआ है, ये v डैश u और v डैश लिखा हुआ है, सही है। पार्ट 3 में वो क्या कहते हैं, फाइंड द एक्सिस कोऑर्डिनेट टू द पॉइंट एट व्हिच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। एक और पॉइंट है, तो हमने कहा चलो इसको ये करते हैं, दोबारा इक्वल टू 0 सेट करते हैं, ये तो खत्म हो जाएगा, एक हो जाएगा t इक्वल टू 0, एक हो जाएगा t इक्वल टू -2, सही है। जब t इक्वल टू -2 हो जाएगा, लिखेंगे e⁻³ into -2, तो याद है e⁻6, और तो ये बन जाएगा 4/e² plus 3, so the answer is 1/e⁻6 and 4/e² plus 3, सही है।